السلام علیکم. ہماتن گوش میں خوش آمدید. تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ہماتن گوش کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے، اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا. شکریہ. لہو کے تاجروں کی صفاقی اور سیاہ کاریوں کی لہو رنگ داستان. لمحہ لمحہ دہشت، لمحہ لمحہ موت کی طرف بڑھتی ہوئی کہانی. لہو کے تاجر. قسط نمبر 8. بابر نے یہ بات بہت زیادہ نرم لہجے میں کہی تھی، لیکن الفاظ ایسے تھے کہ کمال کی تکلیف میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تھا. لیکن کس لیے؟ اس نے سرگوشی میں پوچھا. یہ گفتگو بس اس کے اور بابر کے درمیان ہی ہو رہی تھی. اس لیے کہ میری زندگی کا یہی مقصد ہے. مجھے اس بات سے بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے. مقصد حاصل کرنے کے لیے میں کسی کو کچل بھی سکتا ہوں اور روند بھی سکتا ہوں. جانتے ہو تم، کمال اس تمام گفتگو سے دستبردار ہونا چاہتا تھا. اذیت سے بچنے کے لیے اس اندھیرے میں چھپ جانا چاہتا تھا جو اس کی آنکھوں میں چھا رہا تھا. لیکن یہ شخص اسے حیران کیے جا رہا تھا. انسان ایسے بھی ہو سکتے ہیں؟ یعنی تم شیطانیت کا ایک بھیانک روپ ہو؟ نہیں، میں تو صرف اور صرف ایک محب وطن آدمی ہوں، بابر نے معنی خیز لہجے میں کہا. پھر اس نے تیزی سے موضوع کو بدلنا چاہا. یہ جنہیں تم بچے کہتے ہو نا، اس نے کلاس روم کی طرف اشارہ کیا، اب یہ ہمیشہ دہشت زدہ رہیں گے، اس لیے کہ ہر سنسان سڑک پر، ہر تاریک گلی کوچے میں انہیں زندگی بھر میرا سایہ ہی نظر آتا رہے گا. میرے مر جانے کے بعد بھی میری یادیں ان کے ذہنوں میں زندہ رہیں گی. جانتے ہو تم. کمال نے آنکھیں بند کر لی اور ایک لمحے کے لیے خاموش لیٹا رہا. کیوں؟ اس بات کا جواب ہے تمہارے پاس؟ بابر نے اسے چھیڑنا چاہا. کمال نے آنکھیں بند کیے جواب دیا، تم خود کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دیتے ہو، اس لیے. بابر نے بڑھ کر اس کے کھلے زخم پر جوتا رکھ کر دباؤ ڈالنا چاہا. کمال تکلیف سے بلبلا اٹھا. اور تم بکواس بہت زیادہ کرتے ہو، وہ غرایا. پھر وہ شہلا کی طرف مڑا. فیکلٹی روم میں فرسٹ ایڈ باکس رکھا ہے، وہ لے آؤ. لیڈی ٹیچر ہمارے ہیرو کی مرہم پٹی بھی کرے گی نا. دیکھو تم، بدقسمتی سے ابھی ہمیں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. وہ کونے میں بیٹھے ہوئے طلباء کی طرف گیا اور نازیہ کے سامنے جا رکا. یہ ہماری صلاحیتوں اور طاقت کا ایک چھوٹا سا نمونہ تھا. جانتے ہو تم لوگ، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، لہٰذا بہتر یہی ہوگا کہ ہمیں ایسا کوئی موقع نہ دو کہ تم لوگ بھی ختم ہو جاؤ. اس نے ادھر ادھر دہشت زدہ چہروں کو غور سے دیکھتے ہوئے غراتے ہوئے کہا. وہ 27 نوعمر لڑکے لڑکیوں کے میدوں میں ہونے والی اینٹھن کا تصور بھی کر سکتا تھا. اس نے ایک ایک چہرے کو بہت غور سے دیکھا. پھر اس کی نظریں نازیہ کے معصوم اور حسین چہرے پر آ کر رک گئیں. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. وہ چند لمحے اسے گھورتا رہا، پھر مشکور کو اپنے ساتھ لے کر کمرے سے باہر نکل گیا. صوفیہ نے شہلا سے فرسٹ ایڈ باکس چھین لیا اور کمال کی طرف تیزی سے لپکی. کمال نے اسے دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن اس کی حالت ایسی تھی کہ اس پر قابو پانا صوفیہ کے لیے مشکل نہیں تھا. اس نے اس کے کندھے کا زخم کھولنا چاہا اور اس زخم کا جائزہ لیا. گولی جوڑ کے قریب موٹے مسلز کو پھاڑتی ہوئی تقریباً گزری تھی. اسے احساس ہو گیا تھا کہ زخم صاف کرنے اور خون روکنے کے سوا کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا. وہ 5 انچ لمبا ایک بدصورت زخم نظر آ رہا تھا جس سے ادھڑا ہوا گوشت جھانکتا تھا. اس نے بہت غور کیا تھا، لیکن اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ اگر کمال کو فوری طور پر بھی کسی ماہر ترین سرجن کی خدمات حاصل ہو جائیں جو کہ خارج از امکان تھیں، تو شاید اس کا ہاتھ کبھی پہلے کی طرح کام نہیں کر سکے گا. اس نے زخم کی صفائی شروع کر دی اور پٹی کو اینٹی بائیوٹک میں بھگو کر زخم پر رکھنے کے بعد اسے خوب کس کر باندھ دیا. بینڈیج نے فوراً ہی خون کو جذب کرنا شروع کر دیا، یعنی پٹی بار بار بدلنی بہت ضروری تھی. پھر ایک طالب علم کی مدد سے اس نے کمال کو زبردستی ایسپرین کی 2 گولیاں کھلا دیں. اس سے زیادہ وہ اس کے لیے کچھ مدد نہیں کر سکتی تھی.
निढाल सी होकर दीवार से टेक लगाकर वो चुपचाप बैठ गई और उसका सर अपनी गोद में रख लिया। वो उसके रुखसार पर पड़े नील को अपनी उंगलियों से बड़ी नरमी से सहलाती जा रही थी। वो अब भी होश में था, लेकिन अपनी निगाहों को फोकस करने के लिए उसे सख्त कोशिश करनी पड़ती थी। पुरसुकून रहने की कोशिश करो ना, सूफिया ने आहिस्ता से उसके कान में कहा। ये कैसे मुमकिन है? मैं बहुत तकलीफ में हूँ। कमाल की आवाज़ बहुत दूर से आई। फिर भी हाथ पांव तो ढीले छोड़ो ना, खून रुकना बहुत ज़रूरी है। कमाल ने सर को तफहीमी जुम्बिश दे दी। उस लम्हे रईस अंदर आया और घुटनों के बल उसके पास ही बैठ गया। सर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो लोग इतना कुछ कर गुजरेंगे। वो आहिस्ता से बोला। जाओ, चले जाओ यहाँ से। कमाल ने तेज़ लहजे में सरगोशी करनी चाहिए। इसके साथ ही उसकी आंखें बंद हो गईं। होशो हवास उसका साथ छोड़ गए थे। बेहोशी के अंधेरे में वो फिर छोटा सा लड़का बन गया। वो छोटे से अस्तबल में स्याह बछेरे की बागें थामे खड़ा था। वो कितनी वसी व अरीज दुनिया थी। 40 एकड़ ज़मीन, ज़रई नहरी ज़मीन। वो हर सुबह 4:30 बजे बेदार होता था। अपने बछेरे और बाकी तमाम जानवरों को चारा डालता, उस पर सवारी करता। उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 8 या 7 साल होगी। इतनी ताकत, इतनी तवानाई उसमें कहाँ से आती थी कि वो 4:30 बजे उठ जाता। स्कूल से वापस आने के बाद वो फिर से भूसे के ढेर के ऊपर उछलता कूदता और देर तक खेलता रहता। ख्वाब की इस कैफियत में भी वो भूसे की खुशबू में घुली मिली गोबर की बू को अच्छे तरीके से महसूस कर रहा था। वो कितनी महफूज दुनिया थी, कितनी पुरसुकून दुनिया। 20 भैंसें और 100 से ज़ायद मुर्गियाँ थीं और घर के मक्खन की सी नरमी और जायका फिर कहीं मिल ही नहीं सका। वो दिन, वो खूबसूरत सुबह, वो सुबह कहाँ चली गईं और वो शामें क्या हुईं, कहाँ गया वो सब कुछ। और वो बाबा, तनोमंद, सख्त जान और जफाकश बाबा, जिन्हें देखकर लगता था कि वो पत्थर के बने हैं, और वो बड़े बड़े खुरदरे हाथ उनके, वो कहाँ गायब हो गए। कैद से रिहाई के बाद वो वापस आया तो अपने सुकड़े सिमटे बाबा को देखकर दंग रह गया था। वो जानता था कि उसकी कैद के दुख ने बाबा को अंदर से चाट लिया है। वो उस रात अपने बिस्तर पर लेटकर चुपके चुपके रोता रहा था, इसलिए कि पत्थर का मजबूत आदमी रेजा रेजा हो रहा था। उसके वजूद में दरारें पड़ गई थी और फिर 2 साल बाद जैसे सब कुछ जल गया। पूरे गांव को मालूम था कि वो किन लोगों की हरकत है, लेकिन कानून को नहीं मालूम हो सका। उसने पुलिस को बताया था, लेकिन मुजरिमों के सियासी हाथ बहुत ज़्यादा लंबे थे। पुलिस उन पर हाथ नहीं डाल सकी थी, लिहाजा गफलत से काम लेती रही। और वो खुद इंतकाम लेने की ताकत और हिम्मत रखता था, लेकिन वो खुद फौजी था। वो सिर्फ गैर मुल्की दुश्मनों के खिलाफ हथियार उठा सकता था, अपने मुल्क के किसी फर्द के खिलाफ नहीं। उसे यही तरबियत दी गई थी, इसलिए वो खामोश था। सो वो इंतकाम से बिल्कुल दस्तबरदार हो गया था। उसके पेट से मतली का एहसास एक तेज़ लहर की सूरत में उठा और उसके हलक तक चला आया। इस एहसास ने उसे बेहोशी की अंधेरी आफियतगाह से बाहर ला खड़ा किया। वो इतनी जगह से दुख रहा था कि किसी एक मकाम अजियत को भी पहचान नहीं सकता था, उसकी निशानदही नहीं कर सकता था। गहराई में धड़कता लुढ़कता दर्द उसकी गर्दन से फैलता फैलता उसके बाएं हाथ की उंगलियों तक आ पहुंचता था। उसने हरकत करने की कोशिश की, लेकिन उजलात का हल्का सा खिंचाव भी मतली के एहसास को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया करता था। वो करवट बदलना या फिर उठना चाहता था, लेकिन ये उसके लिए बिल्कुल नामुमकिन सा लगता था। वो ठंडे फर्श पर आंखें बंद किए चुपचाप लेटा रहा, अपनी पेशानी पर पसीना फूटते महसूस करता रहा। पसीना बहकर उसकी कनपट्टी तक चला आ रहा था, कान के नीचे से गुजरकर गर्दन पर टपकता था। वो जानता था कि उसका चेहरा पीला पड़ चुका है। खून की कमी को वो अच्छे तरीके से महसूस कर रहा था। ठंडक का एहसास उसकी जिल्द के आर पार उतर रहा था। उसे अपना जिस्म तैरता और झूलता महसूस होता था और वो जिस्म की हरकत पर काबू पाने की कोशिश में मसरूफ़ था। काफ़ी देर के बाद उसे आंखें खोलने की हिम्मत हो सकी। आंखें खुली तो उसे धुंधलाहट के सिवा कुछ नज़र ही ना आता था। नज़रें फोकस करने की कोशिश में मतली का एहसास दोबारा उभर आया। वो आंखें फाड़ फाड़ कर गौर से देखता रहा। फिर सूफिया का चेहरा उस पर झुक आया। कैसा महसूस करते हो अब? सूफिया ने सवाल किया। बहुत ख़राब। तुम्हारी हालत अच्छी नहीं लगती।
کندھے کا کیا حال ہے؟ بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتا ہوں۔ یہ اندھیرا کیوں ہے؟ تم بہت دیر تک بے ہوش رہے ہو اسی لیے۔ کیا وقت ہوا ہے؟ میرا خیال ہے رات کے 12 بج چکے ہیں۔ کوئی خاص بات ہوئی؟ نہیں، وہ وقتاً فوقتاً ہمیں چیک کرنے کے لیے آتے رہے۔ وہ لڑکا جسے وہ بابر کے نام سے پکارتے تھے 2 بار آ چکا۔ وہ نازیہ کو جن نظروں سے دیکھتا ہے مجھے بہت عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے باری باری نیند لے رہے ہیں۔ کمال نے پھر آنکھیں بند کر لی۔ اس پر بے پناہ تھکن غالب آ رہی تھی اور وہ اب مسلسل دھڑکتے درد کی طرف سے اپنے ذہن کو تقریباً بند کر لینا چاہتا تھا۔ بہت کوشش کر کے اس نے اپنی آنکھیں دوبارہ کھول لیں۔ بچوں کا کیا حال ہے؟ ذرا یہ تو بتاؤ۔ تم نے انہیں بری طرح ڈرا دیا ہے۔ میں 2 گھنٹے کی کوشش کے بعد انہیں تقریباً اتنا پرسکون کر سکی کہ وہ لوگ آرام سے بیٹھ جائیں۔ اس وقت میرے خیال میں بیشتر افراد سو رہے ہیں۔ میں تو انہیں صبر و تحمل کے لیکچر بھی نہیں دے سکتا اب۔ تم نے احمقانہ طرز عمل کا مظاہرہ کیا، اسی لیے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم کیا ثابت کرنا چاہ رہے تھے اور کیوں۔ میں خود بھی کچھ نہیں سمجھتا۔ شاید عزت نفس کی بات تھی اسی لیے۔ حالانکہ بھارت کے قیدیوں کے کیمپ میں وہ لٹ چکی تھی۔ پتہ ہے تم مر بھی سکتے تھے۔ جانتے ہو تم، کمال سوچ رہا تھا واقعی ان لوگوں نے اس سے کوئی بڑا مطالبہ تو نہیں کیا تھا نا، تو وہ مطالبہ کمال کو کیوں بڑا محسوس ہوتا تھا؟ اب وہ سوچنے پر مجبور تھا۔ کیا اس لیے کہ وہ صوفیہ کے اور اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے ذلیل نہیں ہونا چاہتا تھا؟ شاید اسی لیے۔ پھر کیا وجہ تھی؟ اگر یہ وجہ نہیں تھی تو پھر کیا تھی؟ گھٹنوں کے بل جھکنا اتنی بڑی بات تو نہیں تھی کہ اس کے لیے آدمی مرنا گوارا کر لے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ حوصلہ اور بدمزگی کا وہ شدید احساس کہاں سے ابھرا تھا جس نے اسے نذیر کی رائفل پر ہاتھ ڈالنے پر اکسا دیا، اور وہ جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ اس سے رائفل چھین کر اس تمام صورتحال کو ختم کر دینا چاہتا تھا جس نے اسے مضطرب کر رکھا تھا، جس کی وجہ سے جنگی قیدیوں کے کیمپ کی ناخوشگواریاں اچانک سے یادیں بن کر ابھر آئی تھیں اور اسے اپنا آپ بہت زیادہ برا محسوس ہونے لگا تھا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ رائفل چھیننے کے بعد وہ کیا کرتا؟ نذیر کو ختم کر دیتا؟ کیا وہ اتنی آسانی سے اپنے نظریات، اپنی اہلیت بھول سکتا تھا؟ اس نے تو ذاتی انتقام کی شدید خواہش کو ان نظریات اور تربیت پر قربان کر دیا تھا۔ اس نے عہد کیا تھا کہ میدان جنگ کے سوا وہ کبھی انسانی زندگی کو موت کے گھاٹ کبھی نہیں اتارے گا، مگر اور کوئی صورت بھی تو نہیں تھی نا۔ یہ اس نے کیا کیا؟ وہ سوچنے پر مجبور تھا۔ میرا خیال ہے اب ہمیں منصوبہ بندی شروع کر دینی چاہیے، اس سے پہلے کہ صورتحال ہمارے ہاتھوں سے بالکل ہی نکل جائے، اس نے صوفیہ سے کہا۔ مگر اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں ان تمام بچوں کو باہر نکالنا ہے، کمال نے کہا، اور اندھیرے میں جانے پہچانے کمروں کو نظروں سے ٹٹولنا چاہا۔ ہر منزل پر کونے والے کلاس روم میں 2 ایسی دیواریں تھیں جن میں کھڑکیاں بنی تھیں۔ عام کمروں میں ایسی ایک ہی دیوار موجود تھی۔ یہ سوچتے ہوئے کمال کو اچانک احساس ہوا کہ یہ کلاس روم کس حد تک اس کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ وہ اس کمرے کے چپے چپے سے اچانک سے واقف ہو گیا تھا۔ سرخ ٹائلوں والے فرش میں کہاں کہاں رکھنے ہیں وہ جان گیا تھا اور وہ جاننا چاہتا تھا۔ چھت پر موجود ہر داغ دھبے سے وہ اچھے طریقے سے واقف ہو چکا تھا۔ اس کی پوری زندگی اپنی تمام اہمیتوں سمیت اس کمرے سے اچانک سے وابستہ ہو گئی تھی۔ یہاں سے اسے خوشیاں زیادہ اور مایوسیاں کم ہی ملی تھیں۔ ان تمام طلباء کی تعداد بھی اسے یاد نہ تھی جنہیں اب تک وہ پڑھا چکا تھا۔ وہ یہ حساب نہیں لگا سکتا تھا کہ ان طلباء اور طالبات نے اس کی زندگی پر کیسے نقوش چھوڑے تھے یا اس نے ان کی زندگی پر کیسے نقوش چھوڑے ہوں گے۔ اس کے لیے وہ کلاس روم ایک شاندار تجربہ گاہ تھا، لیکن آدمی ہوتا ہی ناشکرا ہے، شاید وہ جنت میں بھی خوش نہیں رہ سکے گا۔ اس کلاس روم نے اسے کیا کچھ دیا تھا، لیکن وہ اس کلاس روم کو بہت بڑا بوجھ سمجھتا تھا۔ اس نے طلباء کو نہ صرف اچھی طرح پڑھایا تھا بلکہ خود بھی بہت کچھ سیکھ لیا تھا۔ اس کی بالغ نظری میں اضافہ ہوا تھا، اس کا انسانوں کو سمجھنے کا علم آگے بڑھا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ اسے اس کمرے سے محبت ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہاں کی خوشگوار یادیں خون آلود یادوں میں تبدیل ہو جائیں، اور وہ بھی اس کے شاگردوں کے خون سے۔ وہ ہرگز ایسا نہیں چاہتا تھا۔ وہ انہیں جلد از جلد اس کمرے سے باہر نکال دینا چاہتا تھا جو کسی بھی وقت
मकतल बन सकता था। मेरे ख्याल में सबसे पहले नाजिया, रईस और नौमान को बाहर निकालना होगा। उसने कहा, नाजिया को और तरह का भी खतरा है। वो बाबर जो अभी आया था उसे खराब नज़रों से देखता है। रईस के मुतालिक उसे मालूम हो चुका है कि वो वज़ीर का बेटा है, वो उसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। और नौमान के मुतालिक अगर उसे मालूम हो गया कि वो एसपी का बेटा है तो और मसला खड़ा हो जाएगा। मगर कैसे निकालेंगे सबको? सूफिया ने सवाल किया। अगर पिछली खिड़कियों से 2 लड़कों को किसी तरह आग से बचाव वाले चक्करदार जीने की तरफ उतार दिया जाए तो वो दूसरों की मदद भी कर सकेंगे। उसी वक्त फर्श पर सिमट कर सोते हुए बच्चों के दरमियान एक साया मुतहर्रिक हुआ और उनकी तरफ तेजी से बढ़ा। वो खामोश हो गए। वो नाजिया थी। उसे कमाल दूर से भी पहचान सकता था। क्या बात है नाजिया? उसने सवाल किया। सर, आप तो ठीक है ना? कमाल ने मुस्कुराने की कोशिश की और आहिस्ता से जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। तुम वापस जाओ और सोने की कोशिश करो। सर, मुझे बाथरूम जाना है। ठीक है, ज़रा बाहर का हाल भी देखती आना। नाजिया दरवाजे की तरफ चली गई। अचानक सूफिया ने कहा, इसका अकेले जाना ठीक नहीं, मैं इसके साथ जाती हूँ। कमाल जानता था कि वो उठकर नाजिया के साथ जाने के काबिल भी नहीं। सूफिया को साथ भेजना भी मुनासिब नहीं लगता था। कोई हर्ज नहीं। उसी लम्हे उसकी तबीयत फिर बिगड़ने लगी। उसने आंखें तेजी से बंद कर लीं। वो जानता था कि उसे उठकर बच्चों को बाहर निकालने का बंदोबस्त भी करना चाहिए। सर्दी भी ज़्यादा हो रही थी और वो फर्श पर पड़े थे, लेकिन इस लम्हे वो खुद भी हिल नहीं सकता था। अब वो क्या करे? उसका जहन तारीकी में डूबता जा रहा था और इस कैफियत से लड़ना उसके लिए कोई आसान काम ना था। सूफिया कुछ कह रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता मादूम होती चली जा रही थी। उसे अंदाज़ा हो गया कि वो नींद से नहीं लड़ सकेगा। हमें कुछ देर इंतज़ार करना होगा, वो बुड़बुड़ाया, मगर उसे यकीन नहीं था कि उसकी आवाज़ सूफिया तक पहुंची भी होगी। उसकी कैफियत अजीब सी हो रही थी। अंदर गहरा सन्नाटा छाया था, मगर वो सन्नाटा भी यूं चीखता था कि उसकी समात मुअत्तल हो गई थी, जैसे दूर हवा गुर्राती हुई चलती हो। वो कोशिश के बावजूद कुछ सुन नहीं पा रहा था। बस एक अजीब सी भिनभिनाहट सी कानों में गूंजती थी। उसका जहन अंधेरों में डूबता चला गया। जागते रहने की जिद्दोजहद अचानक से दम तोड़ती चली गई थी। वो भूल गया कि वो क्या करने का इरादा कर रहा था। उसे ये एहसास भी था कि शऊर में कोई अहम बात थी जिसे वो गिरफ्त में नहीं ले पाया था। ज़रा देर बाद सूफिया ने उसे नरमी से हिलाया। कमाल, कमाल, सुनो, नाजिया को गए बहुत देर हो चुकी और वो अभी तक वापस नहीं आई। मुझे तो अब बहुत परेशानी हो रही है। कितनी देर हो गई उसे गए? कमाल ने बहुत कोशिश करके सवाल किया। बोलना भी उसके लिए बहुत भारी काम हो चुका था। आधे घंटे से तो ज़्यादा हो गया। समझ में नहीं आता कि क्या करूं। तुम्हें जगाना भी नहीं चाहती थी, लेकिन मसला बहुत गंभीर था। अब कमाल ने उठने की कोशिश की। उसके जिस्म में हर तरफ अजियत की लहरें दौड़ रही थीं। जैसे तैसे वो उठ बैठा, मगर उसकी पेशानी पसीने में तर थी। मतली के एहसास से लड़ते हुए वो दीवार का सहारा लेकर अपने कदमों पर उठ खड़ा हुआ। ज़रा कदम जमे तो वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैं आगे नहीं जा सकूंगा, उसने सूफिया से कहा। तुम जाकर देखो, मैं यहाँ खड़ा हूँ, गौर से देखता हूँ। सूफिया ने आहिस्तगी से दरवाज़ा खोला और राहदारी में निकली। राहदारी के उस सिरे पर उसे मशकूर बैठा नजर आया। वो नीम व आंखों से उसे ही घूरता था। सूफिया ने बाथरूम की तरफ इशारा किया तो उसने अज़बात में सर हिला दिया। कमाल दरवाजे में खड़ा उसे देखता रहा। सूफिया बाथरूम में दाखिल हो गई। कमाल को तवक्को थी कि वो चंद लम्हों में वापस आ जाएगी। देर लगी तो उसे तशवीश होने लगी। लम्हे अचानक से घिसट घिसट कर आगे बढ़ने लगे थे। तबीयत रह रह कर बिगड़ती चली जा रही थी। उसका बस चलता तो वहीं फर्श पर लेट जाता। पसीने ने अब उसकी कमीज का कॉलर भिगो दिया था। ऐन उसी वक्त जब उसकी बर्दाश्त जवाब दे रही थी और वो फर्श पर लेटने ही वाला था कि दरवाज़ा खुला और सूफिया नाजिया को सहारा देकर बाहर ले आई। कमाल का दिल अचानक से डूबने लगा। यकीनन कोई गड़बड़ थी, इसलिए कि नाजिया के कदम लड़खड़ा रहे थे। सूफिया नाजिया को कमरे में लाई और उसे डेस्क से टिका कर बिठा दिया। क्या हुआ? क्या बात है? जल्दी बोलो, कमाल ने कमज़ोर आवाज़ में पूछा। सूफिया ने नज़रें उठाकर उसे गौर से देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। उस दरिंदे ने दरिंदगी की हद कर दी। सूफिया ने बमुश्किल कमाल को सारी तफसील सुनाई। कमाल के अंधेरों में घिरे जहन को बात समझने में खासी देर लगी, और जब बात उसकी समझ में आ गई तो उसके वजूद में जैसे धमाके से होने लगे।
वो पलट कर अंधाधुंध दरवाजे की तरफ बढ़ा। पहले वो एक और फिर दूसरे डेस्क से जा टकराया। उसने सामने वाली दीवार का सहारा लेकर खुद को गिरने से तकरीबन बचाना चाहा। पसीना अब उसके चेहरे से पानी की तरह बहता था। पसीने ने उसकी आंखों को कुछ देखने के काबिल नहीं छोड़ा था। दीवार से सहारा लेकर आगे बढ़ते हुए उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन उसके जिस्म का पूरा बोझ दरवाजे पर जा पड़ा। उसका कंधा दरवाजे के शीशे से टकराया, शीशा टूटा और उसका कंधा खाली हिस्से में धंसने लगा। अजियत की एक तेज लहर उठी, उसके होंठों से चीख निकली और वो फर्श पर गिरता चला गया। लाउंज में बाबर ने भी उसकी आवाज़ सुन ली, लेकिन उसने उठने की जहमत तक न की। वो जानता था कि ये किस अमल का रद्द अमल है। वो सोफे पर चुपचाप बैठा रहा। फिर उसने नज़रें उठाकर शहला को गौर से देखा। अगर ये टीचर राहदारी में कदम भी रखे ना तो इसे शूट कर देना। फिर वो बड़े तहम्मुल से शहला की वापसी का इंतज़ार करता रहा। उसे उम्मीद थी कि फायर की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। ये टीचर कमाल रशीद उसके लिए ज़ाती नौयत का मसला बन चुका था। वो ऐसे किसी शख्स को बर्दाश्त नहीं कर सकता था जो वसाइल से महरूम होने के बावजूद हौसलामंदी का मुजाहरा करता हो। वो उस शख्स को मौत के अलावा हर तरह की अजियत देना चाहता था। कम अज़ कम फिल वक्त ऐसा ही चाहता था। उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो ये काम कैसे करेगा। कुछ भी हो, उसे इस टीचर को उसके आइडियलिज्म की दुनिया से खींचकर बाहर लाना ही था। इस काम के करने के लिए उसके पास हरबों की कोई कमी न थी। पहले तो उसने सोचा कि जाकर सूफिया को शूट करे, लेकिन ऐसा ना करने की माकूल वजह भी मौजूद थी। बाद में बवक्त ज़रूरत खौफ व हिरास फैलाने के लिए उसे इस्तेमाल भी तो किया जा सकता था। और फिर यह इम्कान भी मौजूद था कि मुमकिन है कमाल के लिए वो इतनी अहमियत रखती ही ना हो। बाबर बल्कि अशोक इस बात का भी कायल था कि कोई अमल बेसूद नहीं होना चाहिए। हर अमल के मतलूबा नताइज हासिल होने चाहिए। कत्ल करने में कोई हर्ज तो न था, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं थी, बशर्ते कि इस कत्ल से शदीद खौफ और दहशत ज़दगी का रद्द-ए-अमल हासिल किया जाए। वो कमाल रशीद के बारे में अच्छे तरीके से सोचता रहा। वो इंटेलेक्चुअल आदमी था। कत्ल से बस उसकी तबीयत बिगड़ सकती थी, लेकिन क्या कत्ल कमाल के उस हिफाजती हिसार को तोड़ सकता था जो उसके और संगीन हकीकतों के दरमियान हद फासिल की हैसियत रखता था? नहीं, शायद नहीं। उसकी हकीकी दुनिया अमल की दुनिया नहीं थी, अल्फाज की दुनिया थी, जो क्लासरूम की उस महदूद दुनिया में उसके होंठों से बहते थे। वो उसके सामईन थे, जिनसे वो अपने आइडियलिज्म के लिए तहफ़्फ़ुज़ कशीद करता था। वो उसे कभी चैलेंज नहीं करते थे, और चैलेंज का ना होना ही उसकी खुद एतमादी का ज़ामिन था। वो जानता था कि सब टीचर्स ऐसे ही हुआ करते हैं, और ऐसे किसी आदमी पर कैसे अटैक किया जा सकता है? नहीं, इसके लिए उन चेहरों पर अटैक किया जाता है जो उसे खुद एतमादी फराहम करते हैं। अब शहला वापस आ गई थी। उसने कहा, वो टीचर फर्श पर गिर पड़ा है। गिर पड़ा है? मगर कैसे? मैं उन तमाम लोगों से ज़्यादा तफसील नहीं उगलवा सकी। वो कहते हैं कि वो दरवाजे से टकराया था। वो ज़ख्मी हुआ है, इसीलिए मेरा ख्याल है शीशे से कट लगे हैं, लेकिन ज़्यादा ज़ख्मी नहीं हुआ। वो गोली के ज़ख्म वाले कंधे के बल गिर पड़ा है, अब बेहोश है। और वो लड़की क्लासरूम में मौजूद थी या नहीं? खूबसूरत वाली? तुम जानती हो मैं किस लड़की को पूछता हूँ। वो फर्श पर बैठी है। अशोक ने अपनी मुस्कुराहट छुपाने के लिए मुंह फेर लिया। उसे उस लड़की नाजिया की आखिरी झलक भी याद थी। वो रेस्ट रूम के फर्श पर पड़ी रो रही थी। अगर उसे कमाल को सज़ा ना देना होती ना, तब भी वो उस लड़की को हरगिज़ ना छोड़ता। मासूमियत हर रंग हर रूप में उसे चैलेंज महसूस होती थी, पामाल करने पर उकसाती थी। उसका बस चलता ना तो उसके खूबसूरत बालों को एक एक करके खींचता और तोड़ डालता। वो उसके मुंह पर सख्ती से हाथ जमाकर उसे घसीटता हुआ रेस्ट रूम के अंदर ले गया। 15 मिनट बाद वो उसके लिए कुछ भी ना रही। अब वो एक बेवकत और काबिल नफरत चीज़ थी उसके लिए। उसका गिड़गिड़ाना, उसकी वो खुली दहशत, उसका तेज़ तेज़ रोना और उसकी सिसकियाँ, बस उसके लिए यही कुछ दिलबस्तगी का सामान था। और बस ये ख्याल कि उसने सिर्फ 15 मिनट में उसकी मासूम रूह पर एक ऐसा घाव भी लगा दिया जो ज़िंदगी भर कोई भी किसी तरह से भी मुंदमिल नहीं कर सकता था। अब वो बहुत मुतमईन नज़र आता था। उसने बमला को बीच वाले जीनों की तरफ को भेज दिया
تاکہ وہ دیکھ لے کہ وہاں پر نذیر موجود ہے یا نہیں، اور اب وہ نذیر کو چھٹی دے دے۔ پھر اس نے اپنے لیے پیالی میں کافی اونڈیلی اور صوفے کی پشت گاہ سے ٹیک لگاتے ہوئے آنکھیں موند لی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کمال کو اور کس طرح سے سزا دی جا سکتی ہے۔ جسمانی طور پر تو وہ اسے توڑ چکا تھا،